यस, अब आगे हम पढ़ते हैं। The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan negotiated them, his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. In so doing, he cut off one of the hairpin bends, regaining the trail further up where the snow had not drifted. So, Satan was very expert in driving in the mountain areas. तो बड़े ध्यान से उसने अपना कार को मैन्यूवर करके और राइड स्टार्ट करी. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. अब जैसे जैसे they were going high up in the mountains, the height was increasing and the author started having a severe headache. उसका हेडेक होना शुरू हो गया क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा और जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी उसका सर भारी हो रहा था. एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज बॉटल सो दैट it could ease off. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks, festooned with white silk scarves and ragged prayer flags. अब वो 5,515 मीटर्स पर पहुंचे तो वहां पर जो रॉक्स थी वहां पर सिल्क के स्कार्व्स बंधे हुए थे और प्रेयर के फ्लैग्स वहां लगे हुए थे. तो वो क्योंकि वो दैट वाज नियरिंग माउंट कैलाश तो पिलग्रिम्स जो आते थे वहां पर अपना स्कार्फ्स और प्रेयर के फ्लैग्स बांध के जाते थे. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction, as is the tradition, and Satan checked the tires on his vehicle. अब जिस तरह से ट्रेडिशन था वहां पे उन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टर्न लिया. He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. अब माउंटेन एरियाज में ड्राइविंग इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल. बहुत एक्सपर्टीज चाहिए ड्राइव करने के लिए और सेटन वॉज वेल वर्स्ड विद दैट क्योंकि उसने बीच में रुककर और जो कार का पेट्रोल टैंक था उसको अनस्क्रू किया, उसको लूज कर दिया क्योंकि प्रेशर बिल्ड हो रहा था उसमें भी और वो प्रेशर निकालना ज़रूरी था. तो यही चीज़ें हैं जो माउंटेन एरियाज में जाने के लिए स्किल्ड ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. फ्यूल जो था पेट्रोल जो था वो एक्सपैंड हो रहा था उसकी वजह से वो प्रेशर बिल्ड होकर वो रिलीज करना जरूरी था. It sounded dangerous to me. Maybe sir, Satan laughed, but no smoking. अब उसने वार्न कर दिया कि स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना क्योंकि it is very dangerous now. My headache soon cleared as we careered down the other side of the pass. अब वो पास के दूसरी साइड से नीचे डिसेंड कर रहे हैं तो हेडेक उसका ठीक हो गया. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. The plateau is pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Tethys Ocean, which border Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. This one was a hive of activity. Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. अब वो जिस एरिया में आए जहाँ उन्होंने लंच किया वो एक प्लेट्यू था, पठार जिसे कहते हैं. वहां पर सॉल्ट के डिपॉजिट्स थे और लेक्स में भी सॉल्ट के डिपॉजिट्स थे. तो वहां पर जो उनको वर्कर्स दिख रहे थे उनके हाथ में एक्सेस थे, कुल्हाड़ियां और शॉवल्स थे, फावड़े, जिससे वो सॉल्ट जो थे वो डिग करते थे और क्लियर करते थे. तो उनके बूट्स पर भी सॉल्ट लगा हुआ था. All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. अब वहाँ salt
डिपॉजिट इतना ज़्यादा था कि सबको सन ग्लासेस पहनने पड़ते थे, क्योंकि जो सन शाइन करता था और रिफ्लेक्ट होती थी सनलाइट, दैट यूज्ड टू हर्ट द आईज। तो वहाँ पर, और ट्रक्स की मूवमेंट उन्होंने देखी वहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी थी, बहुत से लोग मिले वहाँ उनको, और बहुत ट्रक्स थे जो पाइल्स ऑफ सॉल्ट, जिनमें सॉल्ट के ढेर थे, क्योंकि वहाँ पर इतना डिपॉजिट था कि वहाँ से ले जाकर और डिपॉजिट कैरी किया जाता था। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. अब एक और टाउन में पहुंचे वो, होर नाम के, जहाँ पर छोटा सा टाउन था, वहाँ लेट आफ्टरनून में पहुंचे। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck. So Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. अब जो डेनियल थर्ड फ्रेंड था उनका, वो वहां से लाजा से उसने रिटर्न होना था, वापस हो जाना था, तो उसने ट्रक में एक लिफ्ट ले ली और वहां से वापस चला गया। Sorry, we had suffered two punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. अब वहां पर ड्राइव करते हुए जल्दी जल्दी उनको 2 बार पंक्चर हो चुकी थी उनकी कार, और सेटन को बहुत जल्दी थी कि उसको फिक्स करवाना है, क्योंकि अब उनके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं बचा था। Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. और जो दूसरा टायर था वो बहुत ही ज्यादा घिसा हुआ था, तो सेटन को बहुत जल्दी थी कि टायर को, पंक्चर को रिपेयर करवाना है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टायर नहीं था। और यहाँ से हमें ऑथर के बारे में भी पता चलता है। ऑथर इज टेलिंग अस दैट ही हैड अ बॉल्ड हेड, दैट मीन्स ही हैड नो हेयर ऑन हिज हेड। वो द ऑथर गंजे थे। अब होर जो टाउन था उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑथर, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो रीड इट वेरी केयरफुली। Hor was a grim, miserable place. It was a grim means serious, serious sort of place, and miserable means in very bad condition. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks. कोई plants नहीं थे वहां पर, सिर्फ मिट्टी और चट्टाने, rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब और साथ ही साथ वो इतना गंदा था होर, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा गार्बेज था। रिफ्यूज इज गार्बेज, accumulated मीन्स कलेक्टेड, कि इकट्ठा हुआ हुआ गार्बेज था वहां पर, क्योंकि लोगों ने वहां पर विजिट करके, विजिटर्स ने बहुत ही ज्यादा वहां पर कूड़ा फैलाया हुआ था। और इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ये टाउन जो है वो लेक मानसरोवर, जो लेक है, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेनी रिवर्स, और बहुत ही होली मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है लेक मानसरोवर, उसके बिल्कुल किनारे पर ये टाउन है होर। और इतना गंदा होना, इट इज रियली वेरी सैड। So the Lake Mansarovar is Tibet's most venerated stretch of water. It is very pious. It is very respected, holy. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of four great Indian rivers: the Indus, the Ganges, the Satluj, and the Brahmaputra. तो मेन जो इंडियन रिवर्स हैं, चार रिवर्स हैं, उन सब का स्टार्टिंग पॉइंट, सोर्स जो है वो लेक मानसरोवर को माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। सो इट इज अ वेरी सेक्रेड लेक, और उसी के किनारे पर ये टाउन है होर, और इतना गंदा। सो इट प्रेजेंटेड अ वेरी unfortunate look to the author. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash.
We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. अब वो बिल्कुल माउंट कैलाश के बिल्कुल पास आ गए थे और the author was very excited. But I had to wait. Satan told me to go and drink some tea in Ho's only cafe, which, like all the other buildings in town, was constructed from badly painted concrete and had three broken windows. The good view of the lake through one of them helped to compensate for the drought. अब एक ही कैफे था छोटा सा होर में और वो भी इतनी बुरी कंडीशन में था, टूटी हुई विंडोज थी और बहुत बुरी तरह पेंट किया हुआ था। तो वहां पर जाकर ऑथर ने चाय ली, लेकिन वहां से जो लेक मानसरोवर का व्यू था वो बहुत अच्छा वहां से विंडो से दिख रहा था। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. अब वहां पर जिसने चाय सर्व करी, he was a Chinese boy in military uniform. तो वहां पर उसने चाय सर्व करी उस कैफे में। Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement, and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. अब आधे घंटे बाद वो वहां से चले गए। सेटन जो है वो अपना टायर्स का पंक्चर भी रिपेयर करवा के आ गया और दे ड्रोव अहेड. My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Van Hedden, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts. अब वो ऑथर कहते हैं कि उन्होंने पहले जब रिसर्च करी थी यहाँ आने से पहले, तो उन्होंने होर के बारे में, जो टाउन होर था उसके बारे में कुछ ट्रेवलर्स के अकाउंट्स पढ़े थे। तो एक जापानीज मॉन्क ने बहुत ही सुंदर तरीके से लेक मानसरोवर को डिस्क्राइब किया था और सैंक्टिटी, उसकी प्योरिटी के बारे में ऐसा लिखा था कि ही वाज सो मूव्ड बाय द सैंक्टिटी दैट ही फेल्ट लाइक क्राइंग, कि वो रो पड़े थे उसकी लेक मानसरोवर को देखकर। और फिर उसके बाद एक स्वीडन का रेजिडेंट वहां पर आया था और वो भी बहुत ही इम्प्रेस हुआ था लेक मानसरोवर से। लेकिन जो होर में ऑथर को एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत ही कंट्रास्टिंग था विद लेक मानसरोवर. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m., we drew up outside a guest house in Dachin for what turned out to be another troubled night. अब वहां पर आगे जब वो गए तो रात को जहां वो पहुंचे एक गेस्ट हाउस डाचन में, डाचन इज अगेन अ प्लेस, तो वहां पर फिर से उसको परेशानी होने वाली थी उस रात को। अब क्या हुआ? Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hore had set off my cold once more. Though, if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. अब ऑथर को जो वहां से पास करे, वो ओपन एयर में जो डंप्स पड़े हुए थे, कूड़े के, गार्बेज के जो डंप्स थे, उसकी वजह से ऑथर का जो कोल्ड अटैक था वो एग्रवेट हो गया, वो बढ़ गया। One of my nostrils was blocked again, and as I lay down to sleep, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. अब एक नॉस्ट्रिल उनका ब्लॉक हो गया पूरी तरह, और जब वो सोने लगे तो उनको ये पक्का नहीं था, विश्वास नहीं हो रहा था कि दूसरे से इतनी सांस ले पाएंगे वो, कि वो साउंड स्लीप ले सकें। My watch told me I was at 4,760 meters. It wasn't much higher than Ravu, and there I had been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. अब वो उनको याद आ रहा था कि रावू में इससे ज़्यादा हाइट थी और वहाँ भी उनको ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी, और फिर भी
उनको आदत हो गई थी कि रात को इस तरह की डिस्टर्बेंसेस, नॉकटर्नल मीन्स रिलेटेड टू नाइट, तो रात को जो स्लीपलेस नाइट होती थी उसकी थोड़ी-सी आदत हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको ऑथर को डर लगता था कि रात कैसी बीतेगी। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माय माउथ। अब वो क्योंकि उनका नाक बंद है, तो सांस लेने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ while I switched to single nostril power, which seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off, I woke up abruptly. अब थोड़ी देर बाद उन्होंने मुंह बंद करके और एक ही नॉस्ट्रिल जो खुला हुआ था उससे सांस लेनी शुरू कर दी और काफी ऑक्सीजन उससे आ रही थी, और जैसे ही उनको नींद आने लगी, ही सडनली वोक अप, एकदम झटके से उठ गए। अब क्या हुआ? समथिंग वाज रॉन्ग। माय चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हेवी एंड आई सैट अप, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and relieved the feeling in my chest. Curious, I thought. अब वो एकदम झटके से जब उठे, उनको चेस्ट में कुछ हेवीनेस फील हुई एकदम से, और वो उठकर झटके से और बैठ गए। अब इस मूवमेंट की वजह से जब वो झटके से बैठे, तो इस मूवमेंट की वजह से उनका नेज़ल पैसेज जो था वो क्लियर हो गया एकदम से, और चेस्ट उनकी नॉर्मल हो गई, और उनको बहुत ये अजीब सा लगा। I lay back down and tried again. Same result. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. अब वो जब उनकी चेस्ट क्लियर हो गई, नेजल पैसेज क्लियर हो गया, तो वो फिर से लेट गए और फिर सोने की कोशिश करी, लेकिन फिर जैसे ही उनको नींद आने लगी, फिर फिर उनको चेस्ट में हेवीनेस लगी और फिर वो उठकर बैठ गए। तो इस तरह से वो सो नहीं पा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने सोने की कोशिश करी, कुछ उनको ऐसी गट फीलिंग हुई कि उनको सोना नहीं चाहिए। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल impulses again. But this was not the same as on previous occasions. This time I wasn't gasping for breath. I was simply not allowed to go to sleep. तो उनको लगा कि अ, अब उनको साँस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। साँस आ रही थी उनकी, लेकिन वो फिर भी सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि लेटते थे तो चेस्ट हेवी लगती थी, बैठते थे तो ठीक हो जाता था। तो he could not sleep that night. Sitting up once more immediately made me feel better. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down, my sinuses filled and my chest was odd. I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop off. अब वही बार बार वही हो रहा था कि वो लेटते थे तो चेस्ट हैवी हो जाती थी, बैठते थे तो सब क्लियर हो जाता था। उन्होंने कोशिश करी कि दीवार के सहारे बैठकर मैं सो सकूं, लेकिन फिर भी इतना वो रिलैक्स नहीं कर पाए कि उनको नींद आ सके। ही कुड नॉट स्लीप। I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्हें डर लग रहा था कि सो जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो, कुछ गलत हो जाए। A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. So I stayed awake all night. अंदर से उनके कुछ ऐसा आवाज आ रही थी कि अगर वो सोए तो वो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। So he could not sleep that night. सारी रात वो उन्होंने जाग कर बिताई। Satan took me to the Darchen Medical College the following morning. The medical college at Darchen was new and looked like a monastery from the outside, with a very solid door that led into a large courtyard. अब अगले दिन सेटन उनको मेडिकल कॉलेज ले गया चेकअप के लिए, और वो मेडिकल कॉलेज जो था वो नया था और मोनेस्ट्री की तरह लग रहा था। मोनेस्ट्री इज जहाँ पे मॉन्क्स दे स्टे, इट्स अ प्लेस फॉर मॉन्क्स। सो वहां पर ले गया उनको सेटन। We found the consulting room, which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. अब वहां पर एक टिबेटन डॉक्टर मिला, लेकिन
वो बिल्कुल भी डॉक्टर की तरह नहीं लग रहा था। He did not have all the instrument. Paraphernalia means all the instruments related to the profession. So he had no instruments that he had been expecting. No white coat. He looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. कोई उसने डॉक्टर वाला कोट नहीं पहना हुआ था. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. अब ऑथर ने अपनी कंडीशन बता दी रात की और फिर वो तिब्बतन डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे. इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सेटन. अ कोल्ड एंड द इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टीट्यूड. आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. और उसने डायग्नोज करके बता दिया कि इनको कोल्ड है, कोल्ड अटैक है और हाइट का जो अफेक्ट हो रहा है इनकी बॉडी पर उसकी वजह से ये सब हो रहा है और उसके लिए उन्होंने कुछ देने को बोला. आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा. ओह यस, ही सेड यू विल बी फाइन. अब ऑथर ने ये पूछा कि मैं क्या कोरा कंप्लीट कर पाऊंगा, पिलग्रिमेज कंप्लीट हो पाएगी मेरी. तो ही सेड यस यू विल बी फाइन. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. अब वहाँ उन्होंने उसने डॉक्टर ने क्या दिया, उन्हें एक एनवेलप दिया जिसमें 15 15 पोटलियां थी पेपर की, कुछ पाउचेस थे और 5-डे कोर्स मतलब पर डे 3 पाउचेस लेने थे उनको कुछ तिब्बतन मेडिसिन की. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. अब वो कुछ herbal medicine दी उन्होंने जो उनको गर्म पानी के साथ लेनी थी. It tasted just like cinnamon. अब cinnamon की तरह टेस्ट था. Cinnamon is दालचीनी, दालचीनी की तरह टेस्ट था. So it was a herbal powder. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. Both contained small spherical brown pellets. अब लंच और डिनर के जो पाउचेस थे उसमें कुछ टैबलेट्स थी. पैलेट्स, पैलेट्स में छोटी छोटी गोलियां थी. दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग बट ऑफ कोर्स आई टुक देम. अब उनको ऑथर को वो शीप का फी फीकस की तरह उसका जो डंग था उसकी तरह लग रहा था, लेकिन वो लेना पड़ा ऑथर को क्योंकि ही वांटेड टू बी ऑल राइट. दैट नाइट आफ्टर माय फर्स्ट full day's course, I slept very soundly like a log, not a dead man. अब उस मेडिसिन का इतनी जल्दी असर हो गया कि उस रात को बहुत अच्छी साउंड स्लीप आई ऑथर को और he slept like a log and not a dead man. Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. अब वहां तक छोड़कर सेटन जो है वो लाजा की तरफ वापस चला गया. उनको वहां तक छोड़ना था सेटन ने और उन्होंने सेटन बिकॉज ही वॉज अ बुद्धिस्ट उन्होंने जाते जाते बताया ऑथर को कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप की डेथ भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट कुड बी बैड फॉर आवर बिजनेस कि क्योंकि वो वहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इट विल गिव अ बैड नेम टू द प्लेस और फिर वहां लोग आने से डरेंगे. Darchen didn't look so horrible after good night's sleep. It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of cloud suspended over its summit. अब दार्शन जो है वो भी होर की तरह ही था, डस्टी था, गंदा था और वहां भी गार्बेज काफी था, लेकिन सन वहां पर बहुत क्लियर था, बहुत ब्रिलियंटली शाइन कर रहा था और स्काई बिल्कुल क्लियर था और वहां से हिमालयाज का बहुत ही सुंदर
व्यू नजर आ रहा था। The town had a couple of rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap, and other basic provisions, as well as the usual strings of prayer flags. अब वहाँ पे कई shops थी, general stores थी, वहाँ पे Chinese सामान बहुत मिल रहा था, basic provisions का. In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool, the battered table looking supremely incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house. अब वहां पे लोग उन्होंने ऑथर ने कुछ लोगों को पूल भी खेलते हुए देखा, लेकिन वो जो टेबल था वो बहुत ही टूटा-फूटा टेबल था जिस पर पूल खेल रहे थे, और वुमेन जो थी वहाँ पर बिल्कुल आइसी वाटर, ठंडे पानी में, एक लेक थी, एक छोटी-सी लेक थी आइसी वाटर की, वहीं पर वो अपने बाल वगैरह धो रही थी। Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. अब वो जो टाउन था डार्चन, वो बहुत ही रिलैक्स लग रहा था और बहुत ही शांत लग रहा था, पीसफुल लग रहा था। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक था, उस टाइम पे जब ऑथर ने विज़िट किया, वहाँ पर कोई भी पिलग्रिम्स, विज़िटर्स नहीं थे, तीर्थयात्री नहीं थे वहाँ पर। I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors. जब उनको बताया गया था ऑथर को कि जब पिलग्रिमेज का सीजन होता है तो वहां पर बहुत से विजिटर्स होते हैं. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement around its edges as they set up their tents, which spilled down onto the plain. I had timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early. तो ऑथर ने इसी तरह से प्लान किया था अपना पिलग्रिमेज कि जस्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन में वो विजिट करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था वहां देखकर कि ऑथर जो थे वो बहुत जल्दी पहुंच गए थे और इसलिए वहां पर और कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे. One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Dachin's only cafe. After little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. तो एक आफ्टरनून में ऑथर जो थे he was thinking, pondering means thinking deeply about his options कि वहाँ पर क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, और तो कुछ खास उनको ऑप्शंस वहाँ पर दिखी नहीं, तो they were very limited. In my defense, it hadn't, because he wanted, he had visited this place, he had come to this place for some peace of mind, mental peace, and to think positively and to meditate. In my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. The pilgrimage trail was well trodden, but I didn't fancy doing it alone. अब वहाँ पे जो रास्ता था, वो जो पाथ था, इट वाज वेल ट्रॉडन मीन्स बहुत लोगों ने उसको विजिट किया था, लेकिन ऑथर को अकेले जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे, और जो उनको डिफिकल्टीज अभी तक फेस करी थी ऑथर ने, स्लीपलेस नाइट्स और जो भी डिस्टरबेंस हुई थी उनको, उसकी वजह से वो अकेले जाने में डर रहे थे. Sorry. The Kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow. अब जो वो पिलग्रिमेज थी वो सीजन के हिसाब से ही कर सकते थे, क्योंकि कुछ सीजन ऐसे भी आते थे जिसमें उन वो जो रास्ता था वो ब्लॉक हो जाता था स्नो की वजह से. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, बट आई wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of Darchan's brook. अब ऑथर को कोई आइडिया नहीं था कि आगे जो रास्ता था उसमें स्नो क्लियर हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि साथ में कोई था नहीं उनके. लेकिन उनको ऐसा डाउट हो रहा था क्योंकि जो डार्चन का जो वो लेक थी उसमें अभी भी साइडों पे आइस के चंक्स लगे हुए थे, पीसेस लगे हुए थे, तो डाउटफुल था कि आगे जाके उनको रास्ते में आइस की वजह से दिक्कत हो सकती है. सिंस सेटन हैड लेफ्ट,
I hadn't come across anyone in Dachin with enough English to answer even this most basic question. अब सेटन वापस चला गया था और वहाँ पर जो लोग थे डार्चन में, उनको किसी को भी इतनी भी इंग्लिश नहीं आती थी कि ऑथर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर सके। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी एक मेजर हिंड्रेंस था। Until that is, I met Norbu. The cafe was small, dark, and cavernous, with a long metal stove that ran down the middle. The walls and ceiling were wreathed in sheets of multicolored plastic of the striped variety, broad blue, red, and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China and in many other countries of Asia as well as Europe. As such, plastic must rate as one of China's most successful exports along the Silk Road today. अब वहां पर सेटन तो चला गया था, लेकिन फिर उनको कैफे में एक और विजिटर मिल गया ऑथर को, एंड ही वाज नॉर्बू। एक छोटा सा कैफे मिला, उसमें वहां पर उस कैफे की जो वॉल्स थी और सीलिंग थी, वो प्लास्टिक की शीट से कवर्ड थी, सारी की सारी, और स्ट्राइप्स सीधी सीधी लाइनों वाली प्लास्टिक की शीट्स थी, और वो शॉपिंग बैग्स की प्लास्टिक शीट्स थी, और चाइनीज शॉपिंग बैग्स की। तो चाइना का इफेक्ट पूरा वहां पर उस कैफे में दिख रहा था। वहां पर उनको नॉर्बू से उनकी मुलाकात होती है, और साथ ही साथ ऑथर बता रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो भी चाइना का एक वेरी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है सिल्क रोड से। सिल्क रोड से सिल्क भी एक्सपोर्ट करता था चाइना, प्लस साथ ही साथ प्लास्टिक का भी मेजर एक्सपोर्ट होता था। The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. I had also brought a novel with me to help pass the time. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table. You English? He inquired after he had ordered tea. I told him I was, and we struck up a conversation. सो जब कैफे में बैठे हुए थे ऑथर, एक नॉवल पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे, तो नॉबू एंटर किया वहां पर, और उन्हीं के टेबल पर, रिकटी टेबल मीन्स, रिकटी मीन्स ड्विंडलिंग कह सकते हो, हिलता डुलता हुआ टेबल, उस टेबल पर बैठे, और फिर उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, और उससे पता लगा कि उसको भी इंग्लिश आती है। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a Western style. He was Tibetan, he told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. I assumed he was on some sort of field work. तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया नॉर्बू ने, ही वॉज टिबेटन, बट वो चाइना में, चाइना की चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करता था, और कुछ फील्ड वर्क पर आया था। यस एंड नो, ही सेड, आई हैव कम टू डू द कोरा। अब उसने भी यही बताया कि मैं कोरा के लिए ही आया हूँ, पिलग्रिमेज के लिए ही आया हूँ। माई हार्ट जम्प नाउ, द ऑथर, व्हाट एल्स कुड द ऑथर आस्क फॉर। ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि बहुत अच्छा हुआ, एक साथ में उनको कंपेनियन मिल गया। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, he told me, but he had never actually done it himself. तो नॉर्बू ने ये भी बताया कि उसने बहुत से पेपर्स लिखे हैं कैलाश कोरा के बारे में, लेकिन कभी उसने खुद विजिट नहीं किया था, तो इस बार वो विजिट करने आया था। When the time came for me to tell him what brought me to Darchan, his eyes lit up. We could be a team, he said excitedly. So he, Norbu भी बहुत excited हो गया कि हम एक टीम की तरह कोरा को कंप्लीट करेंगे। Two academics who have escaped from the library. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. तो अब ऑथर को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा था कि एक कंपेनियन मिल गया
So he had some solace. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill equipped as I was for the pilgrimage. अब शुरू की एक्साइटमेंट बाद में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई, क्योंकि उनको ये पता चला कि नॉर्बू भी उतना ही अनजान था उस पिलग्रिमेज के बारे में, जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जितना खुद ऑथर था। तो दोनों ही एक तरह से कह सकते हैं अनाड़ी थे। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वाज एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी। तो यहाँ से नॉर्बू के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगता है कि ही वॉज फैट, वेरी हाई अप। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी सो टायरसम टू वॉक। सो नॉर्बू वॉज क्वाइट रिलक्टेंट टू गो अप। वो इतना एक्साइटेड नहीं था ऊपर जाने को। वो कह रहा था कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, बहुत थकावट वाली है। He wasn't really a practicing Buddhist, it transpired, but he had enthusiasm and he was of course Tibetan. तो एक पॉजिटिव चीज थी कि वो उसमें एक जोश था, enthusiasm था, और वो टिबेटन था। तो एटलीस्ट वो लैंग्वेज में बीच रास्ते में जो लोग मिलेंगे, लोकल लोग, उनसे कन्वर्स कर सकता था। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, on reflection I decided that perhaps Nobu would turn out to be the ideal companion. अब initially तो author ने ये सोचा था, he had envisaged means he had imagined, कि उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल जो बिलीवर्स हैं, डिवाउट बिलीवर्स मीन्स कट्टर, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, बिल्कुल भक्त लोग जो हैं, उनके साथ ही मैं कोरा कंप्लीट करूंगा। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, नोरबू वुड बी द आइडियल कंपेनियन। He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign, and he had no intention of prostrating himself all round the mountain. अब नॉर्बू ने ही, बिकॉज ही वॉज ऑन द हेवियर साइड, थोड़ा मोटा था, तो उसने ये सजेस्ट किया कि कुछ याक्स ले लेते हैं। याक इज एन एनिमल, इज अ माउंटेन एनिमल रिजेंबलिंग अ बफेलो। और उसने कहा कि याक हमारा लगेज कैरी कर लेगा। तो ऑथर को अच्छा लगा ये सुनकर कि ठीक है, और नॉर्बू ये नहीं चाहता था कि खुद वो पूरा का पूरा रास्ता सामान उठाकर घूमे, नॉट पॉसिबल। और वो पूरा ऑल अराउंड द माउंटेन पूरा जाना भी नहीं चाहता था। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर। इट wasn't his style, and anyway his tummy was too big. अब नॉर्बू जो था, वो पूरा माउंटेन का विजिट वो करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे लिए ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ही वॉज रियली टू फैट। सो दैट इज ऑल। तो यहाँ तक हमें ये पता लगता है कि ऑथर वॉज एक्साइटेड टू गो एंड कंप्लीट द कोरा, and he got an got a companion also in Norbu। और उसके बाद उन्होंने याक्स भी हायर किए लगेज कैरी करने के लिए। तो नॉर्बू ने शायद वो कंप्लीट नहीं किया होगा कोरा, but the author did complete the Quora. So that is all about the lesson. That's all. So now we have completed all the lessons of Hornbill. सो हॉर्नबिल इज डन, एंड स्नैपशॉट्स का एक ही लेसन रहता है हमारा, दैट इज लेसन 5 और 6। इट इज मदर्स डे, इट इज अ लॉन्ग प्ले, सो विल डू that also in due course of time. So that's all. Thank you.